स्टार्ट कर दूं? जी स्टार्ट। Assalamualaikum, this is Zarmeen Shabazz, roll number 14829. Today the topic of my presentation is woods और इसकी टाइप है आगे softwood. मैम नीचे स्क्रीन इंट्रोडक्शन में है softwood refers to lumber that has been cut from a conifer, forest or an evergreen tree. Softwood are frequently used as building material. इसके इंट्रोडक्शन में सिंपली ये है कि जैसे softwood है ना ये evergreen है और ये फर्नीचर में भी यूज़ हो जाते हैं, फ्लोरिंग, रूफिंग, इन सब चीज़ों में यूज़ होते हैं और मतलब कि कारपेंटर वगैरह में यूज़ होते हैं और कैबिनेट वगैरह बनाने होते हैं जो सॉफ्ट शीट्स होती हैं उनमें भी ये यूज़ होते हैं। और इसके अलावा the use of softwood is considered to be environmentally friendly because the trees grow more quickly than hard-working trees. और ये जो सॉफ्टवुड ट्रीज होती हैं ये इनकी जो वुड होती है ना और इससे जो मटेरियल बना होता है ये मतलब कि ज़्यादा देर चल जाती है। अगर हम लोगों ने कैबिनेट वगैरह बनाए हैं या अलमारियाँ वगैरह बनाई हैं इससे तो ये मतलब कि काफ़ी देर तक आराम से चल जाती हैं, ख़राब वगैरह नहीं होती। एंड नीचे दूसरी स्लाइड कर दें। डिफरेंट सॉफ्टवुड स्पीशीज़, इसकी आगे जो टाइप्स आ जाती हैं उसमें आ जाती है डोगलस फिर, ईस्टर्न वाइट पाइन, हेम्फिर, पोंडेसोरा पाइन, रेडवुड, सेप्रूस पाइन, फिर साउदर्न पाइन, वेस्टर्न रेड सिडर्स। मैम ये क्या प्रोनाउंस करेंगे? हैदर, सीडार, इसको आप सीडार सीडार, वेस्टर्न रेड सीडार। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर लें। इसकी आगे एक टाइप है पाइन, जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि इसके बिल्कुल पतली सी ये है और लंबा सा ट्री है। Timber from pine trees is the most common softwood option from different applications, primarily furniture. The wood is popular thanks to its ability to bend, make it carving easily. Pine also is easily available and simple to use. The wood lasts as a long white, which is why it works well for flooring, framing, and ever roofing. Pine come in several varieties such as white, yellow, and ponderosa. ये जो ट्री है ये लंबा है और मतलब कि इस इजीली बेंड हो जाता है। इसको ये भी लॉन्ग लास्टिंग है। इसको कार्विंग के लिए भी यूज़ होता है और फर्नीचर वगैरह में भी यूज़ होता है और ये भी एवरग्रीन है। इसकी वैरायटीज़ हैं, ये वाइट में भी है, येलो में भी है और पोंडेरोसा में भी है। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें। नेक्स्ट इसकी टाइप है सिदार। Cedar is tougher than most softwood, which make it suitcase for a host of applications. Some homeowners even use it for roofing. Cedar handles most environments better than most softwood, which is why it is ideal for outdoor uses. You can get cedar for outdoor furniture, building exteriors, and decking. The Western red cedar is a popular variety of softwood. It has a red hue that make it perfect for customized pieces. The wood has a distinct aromatic smell, which is another reason it is common residential properties. जैसे ये पिक में भी नज़र आ रहा है कि ये देखने में भी काफ़ी हार्ड है और ये बाहर मतलब कि आउटडोर में यूज़ होता है। गेट वगैरह हो गए, बाहर की विंडोज़ वगैरह के लिए यूज़ होता है और फर्नीचर वगैरह में ये यूज़ किया जाता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें। Next इसकी type है redwood. The ability of redwood to withstand exposure renders it perfect for outdoors application. You can use for project like patio furniture, garden fences, and home exteriors without worrying about premature rotting or warping. It is relatively soft with a moderate price. This softwood is a favorite or high quality and declined product like organs and artworks. जैसे पिक में भी है कि काफ़ी ऊंचा दरख्त होता है और इसकी जो वुड है ये हार्ड होती है, लकड़ी इसकी काफ़ी हार्ड होती है और ये फर्नीचर वगैरह में होता है। गार्डन fences and home exteriors. Not worrying about premature rotting or warping.
का हाई क्वालिटी मतलब कि जैसे कि हाई क्वालिटी नेक्स्ट जो कर हाई ले रूफिंग बेटा, इफ इट इज यू आर नॉट अंडरस्टैंडेबल ना तो आप उसको प्लीज नेक्स्ट मुझे बता दें, मैं नेक्स्ट मैम काउंट कर नेक्स्ट लूँ. कर दें नेक्स्ट कर दें फिर also got Douglas fir. This wood is commonly used in buildings. It is also known for Christmas tree. After processing, fir turns into pulp, which is then used for OSB and plywood. It is moderately costly, meaning that it can be used for many other applications. The grain of the tree is straight and pronounced, which is why painting is more suitable for its products. Compared to most softwood, fir is harder and stronger. जो ये फिर ट्री है ये ज़्यादा क्रिसमस ट्री के लिए यूज़ होता है और इसकी जो वुड है इसको हम लोग बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में या फिर विंडोज़ वगैरह डोर्स इसमें भी यूज़ की जाती है और ये ज़रा हार्डर है बाकी ट्रीज से ज़्यादा. मैम नेक्स्ट कर दें. Uses of softwoods. About 80% of all timber comes from softwoods. Softwood have a wide range of applications and are found in buildings, components, furniture, medium density fiberboard, paper, Christmas trees and much more. 80% जो टिम्बर ट्रीज होते हैं वो सॉफ्टवुड से लिए जाते हैं और जो सॉफ्टवुड की ज़्यादा हम लोग बिल्डिंग वगैरह डोर विंडोज़ और क्रिसमस ट्रीज की जो विंडोज़ वगैरह होती हैं इनके लिए यूज़ किया जाता है. मैम नेक्स्ट कर दें. एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवुड्स. एग्जाम्पल में वही जैसे ऊपर टाइप के सिदार, डगलस फिर, जूनिपर, पाइन, रेडवुड, सिप्रूस एंड यू. ये वाली जो पिक है ये यू की है. इसमें जैसे ये छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं. मैम नेक्स्ट कर दें. Density and cost. Most softwoods have a lower density than hardwood. Softwood is typically less. जो softwood है मतलब कि प्राइस में लेस है और हार्डवुड से इसकी डेंसिटी वगैरह भी लो है. टाइम खत्म हो गया. Assalamualaikum. My name is Kashmala Kutub. My roll number is ऊंचा बोलें कश्माला, ऊंचा बोलें. Yes, ma'am. ऊंचा बोलें. Assalamualaikum. My name is Kashmala Kutub. My roll number is 14020. The topic which I am going to deliver you today is benefits of business plan. First है benefits of business plan, जिसमें कुछ लोग ये जानते हैं कि इब्तदाई उम्र से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ बदलती ज़िंदगी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिस तरह आफ्टर पेरेंटहुड, रिटायरमेंट या लॉसिंग जॉब. और कुछ लोग मुलाजमत करते हैं लेकिन अपनी उसी कंपनी में बिजनेस मालिक के किरदार को समेटते हैं. उनके लिए एंटरप्रेन्योर बहुत बेनिफिट है. बिजनेस स्टार्ट करने से बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन ये हमेशा उनके लिए रिस्क भी क्रिएट करते हैं. उसका फर्स्ट बेनिफिट जो है वो है रिवॉर्ड. मैम स्लाइड प्लीज. रिवॉर्ड में ये है कि हर किसी को भी इसका जिस तरह वो काम करता है उसका रिवॉर्ड एक जैसा नहीं मिलता. उसके लिए एक न्यू वेंचर ग्रो करती है और उसमें कामयाब होती है, जबकि दूसरों के लिए ये अननोन चीज़ को फतह करना है, उस पर डटे रहना है. जिस तरह यानी अगर किसी ने शुरू में बहुत मेहनत नहीं की है तो उसको लास्ट में उसका रिवार्ड उसका अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर शुरू में बहुत हार्ड वर्किंग करता है उसका लास्ट में यानी लॉस तो बहुत होगा लेकिन एंड में उसका रिवार्ड बहुत अच्छा मिलेगा. नेक्स्ट है बीइंग योर ओन बॉस. स्लाइड मैम. बीइंग योर ओन बॉस में ये है कि जब आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना शुरू में और खुद ही इसमें मुलाजमत करते हैं तो आप उसमें खुद ही बॉस होते हैं, खुद ही अपनी जो मंजिल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, खुद ही अपने बिजनेस को कंट्रोल करते हैं. इसमें क्या काम होना चाहिए और कैसे हम उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे. नेक्स्ट है इसमें इनकम. स्लाइड में इनकम में ये है अपनी इसमें इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं. जब आप इकोनॉमिक्स नेसेसिटी या एडिशनल इनकम के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप नए सोर्स ऑफ इनकम को फाइंड करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आप ऑनर हैं, अपनी
कंपनी के, लेकिन आप उसको एज अ मैनेजर भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपकी इनकम ये है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम है जो अपने मैनेजर को देनी है वो आपको खुद मिल रही है, और उसमें इनकम जो है वो आपको खुद मिल रही है। तो उसका आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि जो आपने किसी और को देना है वो थोड़ी मनी का लॉस होगा वो छूट जाएगा, बच जाएगा। आगे मैम, फ्लेक्सिबल आवर्स। फ्लेक्सिबल आवर्स में ये है कि शुरू में जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं यानी वो बिजनेस स्टार्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होता है कि आपको फ्लेक्सिबल आवर्स प्रोवाइड हो जाते हैं। जिस तरह आपने कोई स्टार्ट में एंटरप्रेन्योर को चूज करना है। नेक्स्ट मैम, परचेजिंग आवर मैम। परचेजिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, इसमें है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने से बिजनेस को बहुत से फायदे होते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फाइनेंशियल ऑनर को और टाइम को बहुत इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है। यानी अगर कोई हमने पुराना बिजनेस कोई लिया है उसको हम परचेज करते हैं, उस पर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, उसमें शुरू में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि अगर वो बिजनेस लॉस में जा रहा है तो उसमें बहुत सी हमें मेहनत करनी पड़ती है उसको यानी दोबारा उसी पोजीशन पे लाने में या उससे ज़्यादा बड़ी पोजीशन पे लाने में। लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। वो बिजनेस जो ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, बिजनेस ओनर इसी में जंप करके इसी को और बेहतर कर देते हैं। नेक्स्ट मैम, सी द होल बिजनेस। होल बिजनेस का ये कि इसमें हमने अपने बिजनेस को खुद ही देखना है, देखभाल करनी है, खुद ही इसको सेट करना है। जो कारोबार की मनसूबाबंदी है उसे सही तरीके से कारोबार में नुक्ता नज़र से मुंसलिक करना है। लिहाजा आप इसकी क्लियर कट पिक्चर हासिल करते हैं कि आपने अपने बिजनेस में क्या नई स्ट्रेटजी लगानी है, क्या अकाउंटेबिलिटी करनी है, आपका फोकस कहाँ पे होगा, यानी आपने कितने आवर्स उसे देने हैं, यानी आप मनी कितनी रखनी है, जो उसमें चेंजेस करने हैं वो कैसे होने चाहिए। नेक्स्ट मैम, स्ट्रेटेजिक फोकस। मैम स्ट्रेटेजी फोकस में ये है कि आपने जब किसी बिजनेस का स्टार्ट किया है या स्मॉल बिजनेस का स्टार्ट किया उसकी हमने नहीं उनकी शिनाख्त को फोकस करने की ज़रूरत होती है, टारगेट मार्केटिंग में या उनकी सर्विस और प्रोडक्ट में। या हमने जब हम वो काम करें उसकी जो स्ट्रेटजीज पे फोकस करना होता है कि हमने उसकी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, उसकी सर्विसिंग कैसी होनी चाहिए और जो मार्केट में जो टारगेट है उसके मुताबिक कैसे चलाना है अपने बिजनेस को ताकि मैं प्रॉफिट हो और हमारा बिजनेस। नेक्स्ट मैम, सेट प्रायोरिटी। मैम नेक्स्ट, सेट प्रायोरिटी। सेट प्रायोरिटी में ये है कि हमने हर चीज़ को यानी यू कांट डू एवरीथिंग। बिजनेस प्लानिंग को हम हर चीज़ को सेट करना है, यानी चीज़ों को ट्रैक पे लेके आना है, किसी को आगे पीछे नहीं करना है। अगर हम आगे पीछे करेंगे तो हमें बिजनेस में बहुत से नुकसान होंगे, बहुत लॉसेस होंगे, बहुत मुश्किल पैदा होंगी। इस वजह से हमने इनको हर चीज़ को बैलेंस करना है ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके, हमारा जो बिजनेस है वो सेट हो सके, ठीक सीक्वेंस में चल सके। मैम मैनेज चेंज। नेक्स्ट मैनेज चेंज में ये है कि गुड प्लानिंग के जरिए आपको जो अजम्पशंस करते हैं उसको रिव्यू कैसे करना है, जो उसमें प्रोग्रेस हो रही है उसको और न्यू जो वेंचर्स को डेवलपमेंट को कैच कैसे करना है ताकि हम सही ट्रैक को रिव्यू कर सकें, एडजस्ट कर सकें। हमने अगर कोई चेंज किया है, जिस तरह मैम अक्सर ये फैशन डिज़ाइनर है वो सिर्फ पहले ड्रेस बनाते हैं अपने, उसके बाद उसमें उसके साथ फैशन के हिसाब से ज्वेलरी बनाना शुरू कर दिया, आजकल मेकअप में का काम शुरू कर दिया है।
मैम इसमें समय मैनेज कैसे करना है चेंजेस को, नई नई इनोवेशन लेके आते हैं ताकि हमारी चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से सेल हो सके। कश्माला, आपकी कभी आवाज़ बेटा कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कुछ चीज़ें कि वो आप कैसे, टॉपिक इज़ टू लेंथी और आप इसमें इतना वेल प्रिपेयर भी नहीं हो। इसको आप जितना स्पेसिफिक कर सकते हो स्पेसिफिक करो, जनरल मत बात करो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं या आपने इसी को बताना है? मैम कर दें। मैम नेट इशू भी हो रहा है ना थोड़ा सा। जरा ऊंचा बोलें बेटा। डेवलप अकाउंटेबिलिटी में है कि आपने जो अकाउंट की अहलियत है ना उसको डेवलप कैसे करना है, जिसमें एक्सपेक्टेशंस हैं उसको कैसे सेट करना है, जो गुड प्लानिंग के लिए होती हैं उसको ट्रैक पे कैसे लेके आना है। हर एक टूल होना चाहिए रेगुलर रिव्यू के लिए कि क्या एक्सपेक्ट होता है, क्या है और क्या हुआ है। गुड गुड वर्क ये शो अप करता है, यूनिक से डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, फायदा भी होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होती है हमेशा से। मैम नेक्स्ट। इसमें हमने ये मैम कि हमने अपने कैश को जो बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, हमें एक चीज़ पे सब कैश नहीं अपना ज़ाया करना है। हर किसी के लिए हमने अपने एक कैश को स्पेसिफिक रखना है। अगर हमें किसी फैशन डिजाइनिंग में कर रहे हैं उसमें हम अपनी पहले हमने बजट बना लेना है कि इसमें हमें कितना कैश यूज़ करना है। अगर हम मेकअप में कर रहे हैं तो उसमें हमें कितना करना है, और कोई हम और चीज़ काम कर रहे हैं उसमें हमें कैश को ही नहीं मैनेज कैसे करना है। हमारा जो कैश फ्लो होना वो प्लानिंग और मैनेजमेंट के जरिए, यानी हमारा एक सीक्वेंस में आप चल रहा ऐसा होता है करें कश्माला, मैनेज कैश आप सही नहीं बता रही, आप नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। इसमें ये मैम, डज योर डे टू डे वर्क फिट विद योर मेन बिजनेस टैक्टिक। तीन आपकी जो स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट है इसमें आपकी हिकमत अमली क्या है, आपको क्या करना है, उसे कैसे अलाइन करना है जो आपकी स्ट्रेटेजी है आपकी बिजनेस प्लानिंग में, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बेनिफिट हासिल करने के लिए। अगर आपका जो बिजनेस है जो वो आपको हिडन मिसमैच दे रहा है तो आपका बिजनेस जो स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट है वो सही वर्क नहीं करेगी। If you run a government restaurant that has drive-through window, you are out of alignment. लेकिन आप कोई बिजनेस रेस्टोरेंट गवर्नमेंट रेस्टोरेंट है वो आप इनको ड्राइव कर रहे हो तो जो आपकी तो मैम जो आपकी जो अलाइनमेंट है जो स्ट्रेटेजी आपकी है वो आपकी जो काम है उससे थोड़ी सी हट जाती है, आप उस पर प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट मैम। माइलस्टोन में ये है कि गुड बिजनेस प्लानिंग सेट माइलस्टोन यू कैन वर्क टुवर्ड। These are की गोल्स यू वांट टू अचीव, ये वो गोल्स जो आपने अचीव करने हैं अपने गुड बिजनेस को रन करने के लिए। जो आपका सेल लेवल है उससे अच्छा करना है। आपने जो कुछ चीज़ हायर की है, मैनेजर को हायर किया है या न्यू लोकेशन की है या न्यू कलेक्शन की है, आपने कोई सेल लेवल को डिफाइन किया है, हम थैंक यू, उसको नहीं बेहतर थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हमारा टाइम